dance session today. So today we're in the third session of the topic that we started, which is how to not take things personally. And for the session today, we have Sangeeta Didi. Didi, welcome. Om Shanti and over to you. Om Shanti, all of you, and very good morning also. So, all have been okay. त्योहार भी हो गया, इंडिपेंडेंस डे भी हो गया, but our journey is still waiting. We have to reach a journeys of perfection. This all series is what for? How to be a perfect human being. Is it true? Is it a journey of perfection? Because what is a journey of perfection? Mistake free. So all of us are in the journey. त्योहार आके चले जाएंगे, हमारी जर्नी कभी तो खत्म होगी ना. So good to have all of you again. और as usual, there is a request. इशारे से समझने वाले देवता है. इशारे से जो समझ गए वो देवता. कौन कौन देवता है? कह के समझेंगे वो मनुष्य. सभी को वीडियो ऑन करना है और अपने आप को एंजल प्रूव करना है. ओके, अच्छा. और दूसरा अभी हम so today we are going to understand about how to not take things personally. So we have listened a lot of this, कि not to take things personally. But for that, when I take, as such, we have to take things personally also. But there are many things which are not to be taken personally. When we take things personally, what is it? It's called attachment. What? No, he is very personal to me. So in a way, detachment. So when we are detached, we don't take things personally. In other words, not carelessness, not not un indifferent. We are not indifferent. We are not careless. We are very concerned. We are very caring. We are very understanding, but not taking things personally. This is the way to live a life. And in fact, this is the ideal life. Actually, when we talk to somebody, and suppose I am very harsh also. You have done something wrong, of course, a big wrong. You should have not done it. Now we have to see both the situation. One who is doing it, other one who is receiving it. So I have got affected by what you have done. You didn't ask me and you booked the ticket. The program is still going on and it's a very important, your responsibility, and you are living it. Now, I am getting affected by it. और मुझे लगता है कि ऐसी हालत में आप चले जा रहे हो, आपको समझ में नहीं आता है कि क्या होना चाहिए. शुड यू डू दिस? तो वन इज आई स्पीक हार्शली आपको और बहुत शिक्षा दे देती हूँ. तुम ऐसे करते हो, कई बार तुमको कहा, तुम बहुत बार किया है, ऐसे नहीं करना चाहिए. यू डोंट अंडरस्टैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू शुड हैव नॉट टेकन इट. नहीं लेना चाहिए था, मुझे बता देते. सो थिंग्स which are very genuine, if you just say, if you see on the face of it, is it a genuine one? बता देना चाहिए, हमको जल्दी निकलना है. हम नहीं बोलते आपको. और कितनी बार आप करते हो? क्योंकि किया है कई बार.
अब मैंने ये सब बोला, हार्शली बोला, बिकॉज आई गॉट अफेक्टेड, आई टुक इट पर्सनली. नाउ कैन कैन देयर बी द रिस्पॉन्स who is not taking it personally? Now, what could be his response if he has taken it personally? मैंने ऐसे ऐसे कह दिया, गुस्से में कह दिया, तो वो क्या कह सकता है कि ठीक है, इतना किया, वो तो कुछ नहीं देखते हो आपने, जो नहीं किया वो देखा आपने. और ठीक है, मैंने थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं की, इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की, आपको वो देखना चाहिए. एंड व्हाट्स द यूज, आगे से हम आएंगे ही नहीं. नाउ one of us, I am very much affected, but the response from the other side in this manner, what do you feel? Is it okay? और आगे से हम आएंगे भी नहीं, हमको सोचना पड़ेगा आने के पहले. सो नाउ उनकी तरफ से रिस्पॉन्स ठीक है, एक ने गलती की, ए ने गलती की, बी ने जो किया वो ठीक था. यस और नो? बिकॉज उसने उसने वही जवाब दिया, क्योंकि मैंने हार्शली बोला तो सामने वाले ने वैसे जवाब दिया. राइट, रॉन्ग, क्या कहेंगे? बी ने जो जवाब दिया, राइट है या रॉन्ग है? कैन वी से दैट ही हैज टेकन थिंग्स वेरी पर्सनली? He has taken things personally when this is the kind of the answers, yes or no? Yes. तो मतलब if I don't take it personally, तो मतलब क्या होगा फिर? Now the same scenario, the B understands कि yes, I have done a mistake, I should have told, या तो I should have been clear कि मैं half way I can be responsible, the other half I cannot take. That mistake which I didn't say is my mistake, which I won't repeat it again. अच्छा, और दूसरा जो उन्होंने, मैंने इतना किया, वो तो कुछ नहीं, ठीक है, जो किया किया, लेकिन ये जो है वो मैंने नहीं किया, वो तो गलत किया ना, तो मुझे उसको सुधारना है. तो व्हेन आई से मुझे वो चीज ठीक करनी है और अब आगे से वो मिस्टेक नहीं होगी, सो देन इट इज लाइक आई अंडरस्टूड द सिचुएशन और मैंने उसको पर्सनली नहीं लिया. पर्सनली अगर मैं लेती हूं, मतलब क्या होगा फिर? नाउ ऑन द साइड ऑफ द बी, कि ठीक है, आगे से हम नहीं करेंगे फर्स्ट रिस्पॉन्स, इतना करके भी क्या फायदा, इनको तो हमारी कमी दिखती है, दे डोंट सी द प्लस पार्ट विच आई डू. सो आई विल ब्लेम द अदर पर्सन ऑलवेज. एंड मोर इम्पोर्टेंट, द वे यू आर सेइंग, इज इट राइट? ये तरीका होता है बोलने का? कोई जाते जाते मुझे खुशी से विदा करते, सो ऑन द फेस तो आपको जेन्यून लगता है, बट एक्चुअली ही इज गेटिंग, ही इज टेकिंग इट पर्सनली. व्हाट वाज, और थर्ड थर्ड रिस्पॉन्स होता, ठीक है ना, बोलने वाले बोलने दो, आई एम इनडिफरेंट, आई विल डू व्हाट आई विश, व्हाट आई फील राइट. आप अपना लेक्चर देते हो. फोर्थ रिस्पॉन्स, सो थर्ड रिस्पॉन्स, ए बी सी. सो ए is not to take it personally, but understand the feelings of the person who is speaking, and therefore rectify it for future.
and make it an attempt that I understand my contribution of mistake. Second is equal reciprocal. उसने गुस्से में बोला, मैंने भी गुस्से से जवाब दिया, which was also right, because आपने वो तो देखा ही नहीं कि मैंने क्या क्या किया. So okay, second. And third is forget indifferent, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता. A, B, C कौन सा है? A, B, C, which is the right one? What would you say? A, B, C. A वाला कौन? How many say A is the right one? Right है कि नहीं है? So when as such, I understand it, but I rectify. I understand my contribution, and I take a pledge to not commit that contribution again. Is called not taking things personally. Because I understand the feelings. वो कहना क्या चाह रहा है कि this you should have told us, this you should have not done it. Okay, I understand, because there is some loss when I do it, when I don't do it. They have to go through some problems if I just leave it from the middle. तो इसलिए मैं आगे से ऐसे नहीं कर. So one who is detached will respond in this moment. Now, you as a stranger, you're seeing both the scenarios, 3 types of responses. So the most perfect response, whom would you grade it? A, B, C में? Yes, Anushka? A. So the one which is a detached response is always a best response. Detached मतलब उन व्यक्ति से डिटैच नहीं, उनकी बातों से डिटैच नहीं, लेकिन उनकी नेगेटिव बातों का इफेक्ट नहीं है. दैट इज कॉल्ड डिटैचमेंट. बट जो भी उन्होंने पॉजिटिव बताया है उसको यू एप्रिशिएट. बट उन्होंने क्रोध से बोला, दे डिस्काउंटेड व्हाट ऑल आई हैव डन अर्लियर. ये जो मेरा एक डिस्क्रिप्शन होता है ना, दैट इज my attachment to what I have done to that person earlier. Or because of that, I say, because I'm very much attached कि मैंने इतना किया, I'm egoistic. मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, तुमको क्या पड़ी है? तुमको तो ये दिखता ही नहीं है कि मैंने इतना इतना किया. So if I be detached, means I'm not getting affected by your emotions, but I understand your emotions and then act, is called a perfect response. So what in life we should do? एक रिलेशनशिप को भी अच्छा चलाने के लिए क्या चाहिए? You don't react, but you understand and then do that and reply. I'm not saying to react. So when this is the method I adopt in my living style, फिर क्या होगा? संबंधों में एक क्रोध कर रहा है, दूसरा उसको अंडरस्टैंड कर रहा है. एक का क्रोध कितने दिन तक चलेगा? क्रोध के साथ, एंगर के साथ, एंगर मिलने का मतलब है घी डालना. And therefore the fire is always more. And then we say there's always a heated argument. हम कहते हैं ना heated argument. क्यों heated? क्योंकि एक करता है, दूसरा उसको घी डालता है.
बिकॉज पर्सनली लिया, गेटिंग अफेक्टेड. दिस इज कॉल्ड not to take it personally. And second is past is past. The more I have this feeling, whatever has happened until now, even if I get affected, the same scenario we can take. I've got affected and therefore I responded wrongly to the harsh statements by others. But after getting affected, and of course, there was a strong reaction again from that other side, and we don't want to talk to each other, we don't want to see each other. यहां तक भी हो गया. अब उसके बाद one of us would say, past is past, हो गया, चलो forget. I understand that I should have not said this. और दूसरा बोलेगा, yes, I understand, I should have reacted nicely. One of us can say, past is past. So when I say कि नहीं हो गया, चलो, तो it means I'm not taking it personally, but I'm understanding it. But I am fresh now with the fresh feelings. My feelings are not tainted by the earlier scenario. जो पिछला सीन था, अब मैं एकदम क्लीन हूं. अच्छा, जैसे एक ने सॉरी बोल दिया कि नहीं सॉरी मैंने सचमुच रॉन्ग किया, दूसरा का क्या फीलिंग होता है? जनरली एक्सेप्शनल हो सकता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आपने कहा, मैंने भी कह दिया, हम दोनों माफ करें. When I admit, others also admit. हम कहते हैं सॉरी बोलो, तुम सॉरी बोलो, तुमने ऐसे किया. I have to admit my part of the mistake to the extent कि even my negative reaction कि उसने बहुत hurting statements किया and I got hurted, and then I say naturally ना, hurt तो होगा ही ना. My any negative response, जिसको मैं कहती हूँ naturally ना, means I am defeated. विक्टोरियस का मतलब है कोई भी नेगेटिव हो, कितना भी हो, आप डिफीट नहीं हो, आपको फिर भी विजयी है. तो एक तो दिस फीलिंग व्हेन आई डू इट, देन इट इज कॉल्ड अ वेरी पावरफुल एनर्जी. तो नेगेटिव रिस्पॉन्स लाइक और कुछ नहीं, तुमने क्रोध किया, इधर मैं तंग आ गई, कौन कौन गलत है दोनों में से? आप ऑलवेज क्रोध से बात करते हो तो कभी तो मैं तंग आऊंगी ना. एम आई राइट? कभी तो तंग आएंगे. इतना कोई हम देवता है क्या? वी आर ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स. See so many statements we have to say to justify our reaction. राइट है? कौन रॉन्ग है? दोनों या एक ही? दोनों ही रॉन्ग है. हाँ, बस ये हमको समझना है. व्हेन इन प्रैक्टिकल सेशन के बाद किसी ने मुझे क्रोध कर दिया, जो अभी आपने बोला दोनों, उस समय ये समझो यस मैं गलत हूं. दैट इज द बेस्ट विक्ट्री द पर्सन वॉन्ट्स फॉर देमसेल्फ. द रिस्पॉन्स
कि आपने इतना कह दिया, यस मैं भी गलत हूं, यही के लिए वो वेट कर रहा है। जब तक मैं ये नहीं फील करती हूँ या एडमिट करती हूँ, तब तक ही वॉन्ट्स टू गो ऑन प्रिकिंग मी, बट आई हैव टू जस्ट एडमिट। अब आप कहेंगे ये क्या है, ये मतलब थोड़ा तो कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना, बिना सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी चलेगा, इतना तो सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट इसमें, कि इसमें रिस्पेक्ट खो दे रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स आई नो माई वर्थ, आई रिस्पेक्ट माई फीलिंग्स, आई डोंट प्रूव माई फीलिंग्स, आई डोंट negate others feelings, but I respect my feelings, the feelings which are worth to be respected, the feelings which have been, which are embedded with mistakes, वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। हम ईगो से अपनी फीलिंग्स को मिक्स करते हैं, फिर कहते हैं कि नेचुरली ना ईगो हो रहा है, इट वाज नॉट सेल्फ रिस्पेक्ट। तो इसलिए व्हेन आई डोंट, आई अंडरस्टैंड, एडमिट, एंड थर्ड इज ओके, हो गया, कोई बात नहीं, लेट्स बी फ्रेश। एंड जो भी हुआ, व्हाट शुड बी द स्टेटमेंट, जो भी हुआ 1 मिनट अगो, इसमें भी कुछ कल्याण है, इसमें भी कुछ राज है। एक, अब मेरे अच्छे के लिए हुआ है, उसमें कुछ बहुत अच्छा है। अब वो क्या अच्छा है, वो टाइम विल टेल। लेट मी टेल यू अ वेरी वेरी क्रूशियल इंसिडेंट। अवर लास्ट चीफ, अर्लियर चीफ, एक्स चीफ दीदी मनमोहिनी, so she belonged to a very well to do family. Jaslok Hospital of Bombay, you must be knowing, their fathers were the trustee, उस खानदान के वो बच्चे थे। एंड द मदर एंड 2 daughters, they had surrendered their life coming from that kind of family, and therefore at that time it was a big spark, बिकॉज इतने बड़े खानदान के बेटियों ने अपना पूरा जीवन सरेंडर कर दिया टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, बट दे वर वेरी फर्म and very dedicated. What Baba has said, Brahma Baba will do it. Now, after Brahma Baba, she was the additional chief, and Didi and Dadi, they, two of them were appointed to run the organization. So she fell down. She got some, once in the bathroom, she got hurt. There was a clot because of which she used to, उसको चक्कर आते थे बार बार में। तो फिर उनको जब बॉम्बे लेके आए चेकअप कराने, तो डॉक्टर्स ने बोला कि इसमें क्लॉटिंग है, ऑपरेशन होना होगा ब्रेन का। एंड देन दे इन्वोक सुप्रीम एनर्जी, देयर इज अ मैसेंजर, टेल आस्क बाबा इन द मेडिटेशन कि शुड वी डू इट और शुड आई गो फॉर दिस ऑपरेशन और नॉट, बिकॉज इट इज एज 70 है, ब्रेन का ऑपरेशन है। बाबा ने कहा, द मैसेज वॉज, यस यू गो अहेड, सब ठीक होगा। बस बाबा ने कह दिया, नाउ विल डू दिस ऑपरेशन। ऑपरेशन वॉज डन and it was successful. And when they came, brought her from the operation room, they, all the seniors of the organization, they were standing. She gave a powerful vision, drashti भी से to everybody, और अच्छे से वो फिर बाद में उनको रूम में आईसीयू में लेके गए, और आईसीयू में कुछ दिन रखना होता है। सेकेंड और थर्ड डे इन द आईसीयू,
So the nurse who was in the ICU, the oxygen continuously supply होना चाहिए, और वो ऑक्सीजन खत्म हो गया. नर्स थोड़ा नींद आ गई उस समय उसको, और 5 मिनट्स ऐसे रहा. Therefore, the brain didn't get oxygen for 5 minutes. And by the time she did it again after 5 minutes, it was too late. She went into coma. And early morning when the doctor came, he was very much annoyed. नर्स को बहुत डांटा. Such an important case. Like, she was the chief of organization. And आपने ऐसे किया, अब तो कुछ नहीं कर सकते, हो गया वो हो गया. तो अब फिर बाद में डिस्कशन किया, उसने सॉरी तो कहा, लेकिन जो इतना बड़ा मिस्टेक में सॉरी की वैल्यू कितनी होती है. तो पूछा अब क्या कर सकते बताओ. उन्होंने कहा एक ही इलाज है, एक ये ड्रग, एंड यू विल हैव टू गेट इट फ्रॉम जर्मनी. अगर जर्मनी से आ जाए और ये मैं दे दूं तो शी इज एबल टू गेट आउट ऑफ इट, बट इट्स वेरी कॉस्टली एंड इट हैज टू कम फ्रॉम जर्मनी. अब सीनियर्स टू कम व्हाट में, जहां से भी मंगाना पड़े हम मंगाएंगे. And they did all the arrangements. Finally, the drug came and it arrived in the airport. Then it had to come. तो because कोई ड्रग आता है फॉरेन से तो उसकी बहुत मतलब लीगल फॉर्मेलिटीज होती है. एंड 10 o'clock it had come. 4 o'clock it took to get over the legal formalities. And the sister who had gone there to bring it, फटाफट करके उसने वो दौड़ के ऐसे फ्रॉम पार्ला टू बॉम्बे, बॉम्बे हॉस्पिटल. तो वो दौड़ के आई वहां, एंड द ड्रग वाज गिवन. डॉक्टर भगवती, उन्होंने उस ड्रग को इंजेक्शन में डाला, और बस अब प्रिक करने वाला था. द सोल लेफ्ट द बॉडी. नाउ थिंग्स वर ओवर. बहुत अफसोस था कि क्या हो गया. एंड प्लस कि इतनी, मतलब कहाँ कहाँ से वो चीजें लेके आई, और क्या भगवान इतना भी मदद नहीं कर सकता. एंड व्हेन गॉड टोल्ड दैट थिंग यू गो फॉर ऑपरेशन और सब अच्छा होगा, इसके बावजूद ऐसा हुआ. देयर वर मेनी क्वेश्चंस, बट थिंग्स आर गॉन, मींस गॉन. अब तो कुछ नहीं कर सकते. सो देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस ऑल ओवर. व्हाट इज राइट? भगवान राइट है या कौन रॉन्ग है? भगवान रॉन्ग है या डॉक्टर भगवती रॉन्ग है? एंड देन आफ्टर 3-4 days देयर वाज अ मैसेज, ट्रांस मैसेज. तो उसमें बाबा, द डिवाइन फादर, बाबा ने कहा न भगवान की गलती है न भगवती की गलती है. शी हैड अ वेरी पावरफुल थॉट that I want to become, I want to get a very big future role. And therefore, that soul had that thought to get a big role in a next birth. And because of that role, she had to leave this body at this time. So that finally, because until she doesn't leave the body, she won't get that role of the next birth. So that was disclosed. So therefore, then the questions of everybody stopped. Otherwise, what would have happened? We go on blaming each other, and that too for lifetime. तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, डॉक्टर कहता नर्स के कारण हुआ, हम लोग कहते डॉक्टर के कारण हुआ. और फिर इतना सब होने के बाद हम कहेंगे ड्रग आने के बाद भाग्य देखो कैसा है.
शायद इनका होना ही नहीं था, और फिर कहेंगे भगवान ने रॉन्ग कहा। नन ऑफ देम इज रॉन्ग, बट डीप एक फीलिंग थी दैट हैड टू बी टेकन प्लेस, दैट हैड टू बी रिस्पेक्टेड. So finally, who is responsible for whatever is happening to the self? Your own powerful thought. इसलिए हम हमेशा कहते हैं पेशेंट को, आप अपना होप नहीं छोड़ो. If you stop your hope, no one can save you. So therefore, when anything happens, if I have that deep feeling, अच्छा जो भी हुआ, there is a big good hidden behind it. There is a secret of goodness which will be revealed eventually. अगर ये माइंड में होगा, हम कभी भी किसी भी बात में किसी को दोषी नहीं ठहराते. And that is how we can relieve ourselves from the past. नहीं तो पर्सनली अगर हम लेते जाए मेरे कारण, इवन नाउ इन दिस होल सिनेरियो, आप अगर देखो तो डॉक्टर कुड फील हिमसेल्फ टू बी गिल्टी थ्रू आउट, कि आज मेरे कारण ऐसा हुआ. नर्स को फील होता जाएगा, एंड मोर इम्पोर्टेंट, एवरीबडी अराउंड वुड हैव जस्ट बीन पॉइंटेड, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ. तो एक लॉस हुआ, उसके बाद ही बाकी कितने लॉसेस हो जाते. ब्लेम गेम, डिमोटिवेशन, एंड देन you make the person discouraged to take any powerful initiatives eventually. अब वो डॉक्टर कुछ भी केस लेगा तो डरता रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा मिस्टेक ऑलरेडी हो चुका है और इतनी बड़ी नेगेटिव एनर्जी उसको आसपास के लोगों से मिल रही है. तो इवन इफ इट्स अ डॉक्टर, और इट कुड बी इवन ए ह्यूमन बीइंग, I have done it. And when anyone around us take it very personally, the blame, the quantum of negative energy throughout the day, throughout that period you get, you make things very bigger. जब हम पर्सनली लेते हैं ना, तो छोटी बात को बड़ा कर देते हैं, और जब हम लाइटली लेते हैं तो तो बड़ी बात को छोटा कर देते हैं. ओके, खैर ठीक है, मेरी ये मिस्टेक है ना, उसमें दैट मिस्टेक मैं ठीक कर लूंगा. ओके, फिनिश 2 स्टेटमेंट्स. और फिर अच्छा ये है, तुम ऐसे करते हो, ऐसे से बोल दिया. सो आई हैव टू अंडरस्टैंड, आई जस्ट हैव टू टेक इट पर्सनली वेयर माई कॉन्ट्रीब्यूशन इज देयर, नॉट व्हेन अदर्स मिस्टेक सारी उसके मैं पर्सनली लेती जाऊं. तो therefore when I understand right, what is my contribution, और जो भी हुआ अच्छा, तो I take it in a very powerful manner, positive manner, and then throughout, अब उसमें कोई, अभी ये तो खुद का मिस्टेक, now it was a big setback for the organization that time, and 70 की एज में none of our chief dadis until now all had been beyond 80, 90, maximum 90, some of them 80s, but 70 to no one. But Baba, our supreme energy, उन्होंने क्या कहा, न इसका दोष है न उसका दोष है. तो जब तक हम माइंड को इतना लाइट नहीं रखते हैं, तब तक हम जीवन भर एक न्यू कार्मिक अकाउंट उसके साथ क्रिएट करते रहेंगे.
पहले वाला था तो इतना मिस्टेक हुआ, अब और आगे क्रिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा। उसने तो अपना सेटल करके चली गई, लेकिन उसके कारण कितनों ने डिफरेंट और एडिशन कर ली, बट एवरी वन ऑफ देम when it was told by the supreme energy कि everything happens for the best and there was a bigger role, तो ऑटोमेटिकली सबके थॉट्स साइलेंट हो गए। सो टू नॉट take things personally, I have to be very much strong in the concept कि जो भी होना है और हुआ था ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो कभी भी हम लाइट रहें, हो सकता है वैसा पॉसिबल, then you become really very strong and little well we have to try with little things। जब छोटी छोटी बातों में ट्राई करेंगे ना, फिर जब बड़ी भी बात होगी तो पहला स्टेटमेंट माइंड से क्या निकलेगा, इसमें कुछ अच्छा है, कोई बात नहीं। तो उसके उससे यू हैव lightened many hearts and therefore your heart also would be very light। जब हम बहुतों को भारी कर देते हैं ना, हम भी भारी हो जाते हैं। लोग कहते हैं बहुत सिर भारी हो रहा है, मेरा दिमाग बहुत भारी हो रहा है। नथिंग उनका नहीं हो रहा है, वो जो वाइब्रेशंस दे रहे हैं बहुतों का किया है, तो उस कलेक्टिवली उनके पास आ रहा है। द रीजन बीइंग आई, कितनी भी बड़ी मिस्टेक है, कितने ने भी बड़ी किया, लेकिन व्हाट हैव आई लर्न फ्रॉम दिस सिनेरियो, इसमें भी कुछ बहुत 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 अच्छा। यू कैन इमेजिन द डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द अपने हाथ में सारा है पावर, लेकिन होनी जो होनी थी उसने साथ नहीं दिया। सो द डिसअपॉइंटमेंट की क्या करूं, इन स्पाइट ऑफ द बिगेस्ट ड्रग आई गॉट इट, आई कांट डू एनीथिंग। इसलिए कहते हैं होनी बड़ी प्रबल है। नो वी से नो, तो कभी कोई चीज होनी होती है ना, आप कितना भी ट्राई करो वो वैसा ही होता है, एंड दैट इज डिपेंडेंट ऑन द कर्मा ऑफ दैट सोल विच वी लर्न लास्ट टाइम। तो ना मेरा दोष है ना आपका दोष है, किसका दोष है, जो भी उसको अंडर वो कर रहा है उसका कुछ ना कुछ दोष है। और अगर मेरा है भी, आई एडमिट आई वोंट डू इट अगेन, नॉट कि आई गेट एंग्री। लेट अस एडमिट rather than be angry about it, then I can make it very light, easy। So when I understand this, that is, I can actually get along with many kind of relationships, I can maintain many relationships, I can have a mixing nature with many of them and yet be unaffected। नहीं तो जो बहुत हर्ट लेता रहता है ना, लोग कहते बाबा इसके सामने कुछ बोलो नहीं, यही बोलते हैं ना, क्योंकि पता है ये बहुत सेंसिटिव है। बी सेंसिबल, नॉट सेंसिटिव। So this energy is called Raj Yoga meditation। So this is how Baba's, when I connect with the supreme energy, I automatically get that power। So let us do that 3 minutes meditation. And what to do for the next? What could be the homework? 3 things। 1 second पहले हुआ past is past, and everything happens for best। There is a deep secret of goodness in everything।
And third is I admit my mistake, my contribution in the scene. Possible? 3 होमवर्क करेंगे next time. Okay. So we'll do this meditation. अपने आप को सब बातों से फ्री करें. I am a very powerful being. I am powerful than all the scenes around me. मैं शक्तिशाली आत्मा हूं. And now emerge the supreme energy Shivava. I'm getting that rays of power from him. I'm feeling as if the rays of the sun, the supreme energy परमात्मा से मुझे शांति की, प्योरिटी की किरणें मिल रही. दिमाग को एकदम हल्का कर रहे हैं. And I'm cleaning अपने मन को सब बातों से क्लीन कर रहे हैं इस रेस के द्वारा. सब बातों से जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, सब मेरे लिए अच्छे से अच्छा होना है. हर सीन में कुछ न कुछ बेस्ट है ही है. It's always the best. अपने आप को क्लीन कर रहे हैं with the rays of the supreme energy. And I am now ready to do actions through this body. But with this fresh feelings. एक सेकेंड पहले की भी फीलिंग से फ्री. ओम शांति. Om Shanti Didi, thank you so much for the session today and this meditation. And thank you to everyone for joining. Let us meet the next week. Thank you. Have a nice day. Om Shanti.